Hi, good morning, everyone. How are you guys? What's up? All right, so today's topic is formal and informal invitation, and I will quickly check if everything is all right, and then we will start. Okay, now first of all, let me just tell you that right after this class, we have a class on letter to editor, so don't forget to join that class. Right after this, that is at 9 a.m. And very good morning to each one of you. So today's topic is formal and informal invitation. To begin with, let me just tell you first of all that if you want, you can join me on Unacademy Plus. Now, on Unacademy Plus, you get to learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all the courses. You get top educators on one platform, exhaustive coverage of the entire syllabus. You get regular doubt clearing sessions. So after every third session, we have the fourth session as doubt session only. Live test series, you get study material in PDF format. So whatever slides that you can watch here on YouTube, you can actually download them on Plus. Answer writing sessions, because who doesn't need them? Then mentorship and guidance and much more. Now in this much more, we have daily practice section, we have weekly mock test series, live quizzes, ask a doubt feature, daily MCQ test series, and subjective test series. You get a lot of content on Plus, a lot of content that you won't get otherwise in books or maybe online. So you can always choose to परचेज अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो यहाँ पर आपका एक फ़ायदा ये है कि यू कैन ऑलवेज ना ऐसा हो सकता है कि बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से वहाँ से पढ़ लेते हैं एंड देन उसके बाद में वी आर लाइक कि ठीक है वी आर सॉर्टेड नहीं ऐसा नहीं है बिकॉज व्हेन यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मतलब हर जगह से यू डोंट नो एग्जैक्टली कि उसे प्रेजेंट कैसे करना है एंड यू डोंट नो कि मैं वहाँ गलत कर रहा हूँ या नहीं सो वी विल हेल्प यू विद दैट बिकॉज यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर्स लाइक इन सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज एंड विल चेक इट एंड टेल यू इफ यू आर राइटिंग इट करेक्ट और नो. If you want, you can always consider taking an Academy Iconic subscription because you get personal mentor here. So you get one-on-one guidance from from your personal mentor. Then you have live doubt solving here. You get weekly report. You get parent connect, study planner, and all the benefits of Plus. Okay, so if you are consider taking like if you're considering, Plus or Iconic subscription, you can always use the code SDC18 to get 10% discount on your Unacademy and Plus or Unacademy Plus or Iconic subscription. आई वुड टेल यू इफ़ यू आर इन क्लास 11th आप अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद में जब तक आप 11th में तब तक आप 11th का पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद आप 12th में स्विच हो सकते हैं तो इट्स ओके. Also, prices might go up and will go up actually. So if you are considering कि मुझे प्लस लेना है तो now is the good time. You can use the code SDC18 to get 10% discount. Now you can use the same code to unlock the special classes on Unacademy. Now what are special classes? Special classes are free classes. So you can always download Unacademy app. You can go and check out some special classes that are the free classes, and you can unlock them by using code SDC18. You can also check out my profile. The link to my profile is given in description box below, and you can join me on Unacademy for amazing courses and content. Now, with that being said, this is Unacademy, and today we are going to do invitation. Now, first of all, let's know what invitation is. Invitation होता क्या है तो सबसे पहले वो जान लेते हैं because that is important. Hi, good morning everyone, good morning. Thank you so much for joining. Okay, so first of all, man is social by nature, and hence interaction and communication between human being is quite natural. In fact, it has become unavoidable. We may share views either orally or in writing. We hold many social functions, such as celebrations of birthdays or maybe, engagement or wedding or marriage anniversary or this or that. And that's why we require invitation. क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, इवेंचुअली हम चाहते हैं कि हम लोग लोगों को उसके लिए इनवाइट करें, तो हमें इनविटेशन चाहिए, हमें इनविटेशन ड्राफ्ट करना होता है ना. इनविटेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक है फॉर्मल इनविटेशन और एक है इनफॉर्मल इनविटेशन.
फॉर्मल इन्विटेशंस आर एक्चुअली लाइक फॉर्मल लेटर्स, एकदम फॉर्मल लेटर्स जैसे होता है। आप उनको कार्ड्स पे प्रिंट भी करा सकते हो, और साथ ही साथ में इनके भी दो टाइप्स होते हैं। देखो, एक होता है प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड। नाउ जब जब आप फॉर्मल इनविटेशन की बात करते हो तो उसके अंदर आता है एक प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक पर्टिकुलर ओकेजन के बारे में हम गेस्ट को बताते हैं और उनको इनवाइट करते हैं उसके लिए। ये याद रखना कि फॉर्मल इनविटेशन कार्ड पे कभी भी किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम नहीं होगा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक शादी का कार्ड। नाउ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी के कार्ड के एनवेलप पे आपका नाम नहीं होता है, मैं कार्ड की बात कर रही हूँ, मैं इनविटेशन की बात कर रही हूँ कि उस पर स्पेसिफिकली आपका नाम नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ में कुछ 1000 और लोग होते हैं जिनको वो लोग इन्वाइट कर रहे होते हैं, एंड उन सबका नाम वहाँ पे प्रिंट कराना इज नॉट पॉसिबल। तो लॉजिकली आप जब प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड के फॉर्मेट में इन्विटेशन लिखोगे तो आप उसके अंदर एक सामने वाले इंसान का नाम नहीं देने वाले हो। इसके बाद में हम देखते हैं फॉर्मल टाइप्ड या फिर हैंड रिटन इनविटेशन, जो कि एकदम लेटर फॉर्मेट में होता है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को लिखे जाते हैं, वीआईपीज को लिखे जाते हैं, और इसीलिए इनके अंदर उस पर्सन का नाम हमेशा होगा। फॉर्मल इनविटेशन थोड़े फॉर्मल होंगे, पोलाइट होंगे, प्लेजेंट होंगे और कर्टियस होंगे। इनफॉर्मल इनविटेशन की अगर हम बात करें तो ये जनरली पर्सनल लेटर्स जैसे होंगे। इट्स एग्जैक्टली लाइक योर मैसेजेस दैट यू सेंड ऑन वेरियस सोशल मीडियाज। सो वो वैसे होंगे। ये एक्चुअली आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को, आपके डियर वंस को, रिलेटिव को इनवाइट करने के काम आते हैं। इनका टोन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स, इनफॉर्मल और फ्रेंडली होगा। सो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो प्लीज़ एक ही तरीके का टोन मत लिखिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दोनों टोन्स में ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फॉर्मल इनविटेशंस कैसे होंगे। तो एक फॉर्मल इनविटेशन यूजुअली एक सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन होता है थर्ड पर्सन का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये 50 वर्ड्स की लिमिट में आएगा। दैट मीन्स आपके पास 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉर्मली अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन। तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है बिकॉज यू कांट जस्ट से कि यार ऐसा 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 पूरा ऐसा गाथा नहीं लिख सकते हो इसके अंदर ना। फॉर्मल इनविटेशन जनरली इनविटेशन कार्ड्स पे होता है, और हम उनको फॉर्मल इनविटेशन को यूज़ करते हैं बर्थडेज, वेडिंग, इनॉग्रेशंस और इन सब में। ना यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम इनविटेशन देते हैं बर्थडेज के लिए, वेडिंग के लिए या इनॉग्रेशन के लिए, तो हम इनफॉर्मल इनविटेशन देते हैं। ऐसा नहीं है। सिर्फ स्कूल्स में या इन सब में ही नहीं फॉर्मल इनविटेशन यूज़ होता है। वेडिंग, इनॉग्रेशन, ये सारे इनविटेशंस भी फॉर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी टोन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होती है, फॉर्मल होती है, पोलाइट होती है और थर्ड पर्सन में होती है। इनफॉर्मल में तो हम डायरेक्ट बात करते हैं सामने वाले से। सो इसीलिए ये मत सोचना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कौन सा इनविटेशन लिखना है, फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, बट क्वेश्चन वेडिंग के बारे में बात कर रहा है, इनॉग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये मत सोचना कि इसमें मुझे इनफॉर्मल लिखना है। क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर वो बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना होगा, और जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना होगा वहाँ फॉर्मल इनविटेशन आएगा। द इन्विटेशन आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो भी इन्विटेशन आप बनाओगे वो कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेगा, और वो कुछ क्वेश्चंस है हु, whom, when, where, what time, for what। दैट मीन्स आपको ओकेजन मेंशन करना है, आपको इनवाइटी का नाम या इनवाइटीज का नाम मेंशन करना है, जो कि हाइपोथेटिकली नहीं आएगा वहाँ पर। अगर हम देखें तो आयरॉनिकली जब आप कार्ड बनाते हो तब आप यही मेंशन नहीं करते हो, बट फॉर्मल इनविटेशन में हम यहाँ लेटर्स भी कंसिडर कर रहे हैं, तो लेट्स कंसिडर इनवाइटी का नाम भी। इसके बाद में नेम ऑफ द होस्ट, जो इंसान होस्ट करेगा उसका नाम आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा, वेन्यू आएगा। तो ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू इज समथिंग जो कि आएगा ही आएगा। बाकी सारी चीज़ें एक बार को आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसके अंदर नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर या फिर होस्ट का नाम, कोई चीफ गेस्ट, स्पेशल इनवाइटीज, ये सारी चीज़ें भी आप ऑफिशियल इनविटेशन में ऐड कर सकते हो। तो कोई भी तरीके की स्पेशल इनविटेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ये याद रखिएगा।
जब प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशंस आप यूज़ करते हो, दैट मीन्स कार्ड यूज़ करते हो, तो वहाँ पर एड्रेसी का नाम नहीं आता है। मैं वापस से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। जब हम इनविटेशन किसी वीआईपी को भेजते हैं, जब इनविटेशन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसे इनवाइट कर रहे हैं हमारे एक पर्टिकुलर इवेंट में चीफ गेस्ट बन के आने के लिए, या हम उसे इन्वाइट कर रहे हैं जज बनने के लिए, तो ऐसे में हम एक पर्टिकुलर पर्सन को इनविटेशन लिख रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली उनका नाम आएगा। सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट कैरी करेगा और ये 3 मार्क्स में आएगा। दैट मीन्स 1 मार्क फॉर द फॉर्मेट, 1 मार्क फॉर द कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर द एक्सप्रेशन। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि इनविटेशन लिखना कैसे है। रही बात फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि अगर आप कार्ड वाला फॉर्मेट यूज करते हो तो इस तरीके से वो दिखेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर फॉर्मेट को डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा और साथ ही साथ में फॉर्मेट भी डिस्कस हो जाएगा। सो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन है Messrs. Shyam Lal, and ये line नहीं है, लाल है by the way, and Sons are opening a new general store, Galaxy Novelties, in Gitanjali Enclave, Dwarka, Delhi. The inauguration ceremony is fixed for Sunday, 19th October 20XX, and at 11 a.m. Prepare a draft for formal invitation. देखो यहाँ पर formal invitation already लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको गेस करना पड़ेगा। अब गेस करोगे तो क्या गेस करोगे? इनॉग्रेशन है, बहुत सारे लोग आने हैं। अगर बहुत सारे लोग आएंगे दैट मीन्स ये क्या होगा? फॉर्मल होगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक कार्ड सुजाता, बट आपको बनाना पड़ेगा कार्ड अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हम इन्वाइट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नेसेसरी नहीं होगा, आपको लॉजिकली बनाना पड़ेगा। अगर हम इनविटेशन दे रहे हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी का बचा, तो हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। अब क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे तो हम लोगों को कार्ड बनाना ही पड़ेगा, हम लेटर्स नहीं भेज सकते हैं। तो ये कार्ड या लेटर या फॉर्मेलिटी या इनफॉर्मेलिटी टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी। अभी क्वेश्चन 1 में हमने देखा है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी है, बहुत सारे लोगों को हमको इनवाइट करना है, फॉर्मल होगा। इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, कार्ड फॉर्मेट होगा। ऐसे हम लोगों को आइडिया लगाना है, ठीक है, समझ गए? गुड। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा कि ये थर्ड पर्सन में आएगा। तो अगर हम लोग फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन में आना बहुत जरूरी है। कार्ड फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि आपको ये बॉक्स में पुट करना है। नाउ इसका एज सच कोई वर्ड्स बेटा 50 है, 50 है। यस देवांश, वी विल रिज्यूम रियली सून बच्चा। अभी इसका एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है, ऐसा फॉर्मेट वाला फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एक बॉक्स में इसको पुट करना है, मेंशन करनी है कुछ चीजें, जैसे कि होस्ट का नाम, इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, एड्रेस, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन और आरएसवीपी। तो ये चीजें हमें मेंशन करनी है। तो इसका कोई ऐसा फॉर्मेट वाला फॉर्मेट नहीं है। एक चीज याद रखनी है, बॉक्स में होना चाहिए, थर्ड पर्सन में होना चाहिए, और जो एसेंशियल्स मैंने अभी आपको बताया वो इसके अंदर होने चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, एक बार इसको रीड करके देख लेते हैं। Messrs. Shyam Lal and Sons announced the opening of Galaxy Novelties, a general store in Gitanjali Enclave, Dwarka, Delhi. अभी देखो यहाँ इनॉग्रेशन को हमने हाईलाइट किया है। ऐसे ही आपको इनॉग्रेशन को हाईलाइट करना है जब आप लिखोगे। तो अब आप लिखते हो कोई भी ओकेजन के लिए, जब भी आप इसको लिखोगे तो जो भी ओकेजन होगा उसको हाईलाइट करके आना। तो इनॉग्रेशन को हमने यहाँ हाईलाइट किया है। फिर देखो, ऑन संडे the 19th of October, this is this at 11 a.m. all are cordially invited। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखो स्पेशल इंफॉर्मेशन भी डाली है हमने, विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रोसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये ऐसा इनविटेशन में कहीं पे फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं था कि लिखना है, बट ये हमारी स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो भी हमने यहाँ डाली है। गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, ये पूरा ब्लू हो गया। सो यहाँ पर हमने ये स्पेशल इंफॉर्मेशन भी डाली है। देखो, विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्रोसरी वाला। फिर अवेल इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स।
तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इनॉग्रल डिस्काउंट की स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है। फाइनली नीचे आरएसवीपी का मतलब है कि अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो कौन सा, किस पर्सन ने ये आपको भेजा है उसी को तो रिस्पॉन्ड करोगे ना। तो यहाँ पे आरएसवीपी में उस पर्सन का नाम आता है, उसका फोन नंबर आता है, एड्रेस भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल आती है। जरूरी है लिखना, प्लीज लिख लीजिएगा। ओ देवांश, वो थोड़ा सा बच्चा टाइम का इशू रहता है, इसीलिए डेली क्लास नहीं ले पाती हूँ, बट रखूंगी डेली क्लास, कोशिश पूरी करूंगी, डोंट वरी। फ्लेमिंगो और विस्तास के चैप्टर पढ़ा दिए मैंने देवांश, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर लो बच्चे, पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको। दोनों के चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, पोम हो गई है, अभी हम राइटिंग पोर्शन कर रहे हैं डायरेक्ट। लाइव क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम है, मैं फटाफट से आपके लिए लाइव क्लास ले लेती हूँ। चलिए जी, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। आरएसवीपी का फुल फॉर्म एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग है प्लीज रिस्पॉन्ड। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकरण ऑफ 38 कमल कुंज वाराणसी। अब देखना, अभी आप यहाँ पर इनफॉर्मल ड्रॉ करके आते, बट ये ड्रॉ इनफॉर्मल नहीं होगा, रुको मैं बताती हूँ क्यों। वाराणसी, which they may use to invite their friends and relatives on fifth birth anniversary of their son Nikhil at their residence on 28 December 20XX। देखो यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लिखा हुआ है तो ये इनफॉर्मल होना चाहिए, नहीं। आप इवेंट देखो, बर्थ एनिवर्सरी है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, दिस हैज टू बी फॉर्मल। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर आपको बताया ही नहीं जाता कि आपको फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल। तो कैसे चूज करोगे कि फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल? सेलेक्ट करोगे कि कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मल या इनफॉर्मल में जाओगे। तो लोग ज्यादा है तो फॉर्मल होगा, और क्योंकि लोग ज्यादा है तो कार्ड बनाएंगे। तो चलो कार्ड बना लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस राजकरण request the pleasure of your presence on the auspicious occasion of first birth anniversary of their son, third person में आएगा ये, their son Nikhil at their residence 38 Kamal Kunj Varanasi at 4:30 p.m. on 28 December 20XX। and that's it, RSVP लिखा और हो गया काम खत्म। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल सही पहचाना आपने। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा याद रखना प्लीज, ये थर्ड पर्सन में लिखना मत भूल जाना, क्योंकि थर्ड पर्सन में लिखना भूल गए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और एक्सप्रेशन वाला 1 मार्क कट जाएगा। क्योंकि फॉर्मेट का मार्क मिल जाएगा, कंटेंट का मिल जाएगा, बट वो एक्सप्रेशन वाला 1 मार्क कट जाएगा। आप 3 में से 2 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो यूल स्कोर 2 आउट ऑफ 3। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है हम लोगों को, जहां पर हम लोग 3 आउट ऑफ 3 स्कोर कर सकते हैं वहां पर तो हम कोशिश करें ना स्कोर करने का। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि अगर तो हम लोग यहाँ पर कार्ड का फॉर्मेट नहीं यूज कर रहे हैं और अगर तो हम लेटर वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो हम कैसे यूज करेंगे उसको। याद रखिए, चाहे फॉर्मेट लेटर का हो चाहे कोई सा भी, हम लोग थर्ड पर्सन को प्रेफरेबली यूज करेंगे फॉर्मल इन्विटेशन में, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया हमारा दूसरा एक क्वेश्चन। You are the director of Apex Orientation, a leading name in postal coaching for competitive examination including IIT, JEE and CBSE PMT. Yes, Pratham, yes, absolutely. Write letters to the principals of some prestigious school inviting names of 2 brilliant students from each institution to attend their counseling session free of cost. तो चलो यहाँ पर हम लोग लेटर वाला फॉर्मेट लेते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिकली किसी को लिखेंगे। जब हम स्पेसिफिकली किसी को लिखते हैं तब हम लेटर यूज करते हैं, हम कार्ड नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया अपेक्स ओरिएंटेशन, और ये देखो यहाँ पर हमने हमारा आ गया है सेंडर्स एड्रेस, ये रहा हमारा सेंडर्स एड्रेस। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर RSVP का यूज नहीं करते हैं। ऑलरेडी सेंडर्स एड्रेस में हमारे डिटेल्स उस पर्सन को मिल जाते हैं तो RSVP लिखने की जरूरत नहीं है। आरती, मेरे ख्याल से आपने लेट ज्वाइन किया है बेटा। कार्ड फॉर्मेट तब यूज करते हो जब बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना होता है, एंड लेटर फॉर्मेट तब यूज करते हो जब आपको थोड़े कम लोगों को इनवाइट करना होता है, दैट इज स्पेसिफिकली किसी एक इंसान को हमें इनवाइट करने की जरूरत है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग लेटर फॉर्मेट यूज करते हैं।
एग्जैक्टली। सो ये आ गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, देन वी हैव डेट, ये रहा हमारा रिसीवर्स एड्रेस, ये आ गया हमारा सैल्यूटेशन। एकदम लेटर वाला फॉर्मेट चलेगा, एकदम लेटर जैसा ही लिखने का है इसको। और ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रही हमारी बॉडी, और बॉडी के बाद में वी हैव दी योर्स वाला। तो यहाँ पर आपको वो लिखना है योर्स ट्रूली और ऐसा ना, वो लिख के ऋतु नंदा, दैट इज जो भी एक पर्सन का नाम है, एंड देन उसके बाद में उसका डेजिग्नेशन, इफ यू वांट, इट्स ओके। इसको एकदम लेटर के फॉर्मेट में ही रखने का है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखो, जैसे कि यू आर सेक्रेटरी ऑफ ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन मेयो स्कूल अजमेर, द 20th द एलुमनी मीट विल बी हेल्ड ऑन संडे, एंड आपको यहाँ पर ये बता दिया, इनविटेशन लिखना है आपको सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को स्कूल के। तो अभी इसीलिए हमने इसमें लेटर बोल दिया है। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए, लेटर में नहीं लिख सकते हैं RSVP, क्योंकि सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं ना हम, इसलिए RSVP नहीं लिखने का है। और बॉडी का स्टार्टिंग का, और बॉडी का ये बात है कि प्लीज जो हम लोग ना ऐसा बड़ा सा लेटर लिखते हैं ना, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन वाला, वो ना यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। 2 लाइन के अंदर मुश्किल से पूरा लेटर खत्म हो जाना चाहिए, प्लीज इसको ध्यान में रखना, क्योंकि 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। ठीक है, तो हमें वो वाला नहीं करना है जो हम लोग लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन में करते हैं, वो अननेसेसरी खींच देगा पूरे इनविटेशन को, पूरा खराब हो जाएगा। तो वो थोड़ा याद रखिएगा। चलिए जी, इसके बाद में आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में। इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में एक चीज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि ये कार्ड फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन कभी भी कार्ड फॉर्मेट में नहीं लिखे जाएंगे। अगर आप अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे, अगर आप अपनी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो आप उसके लिए स्पेसिफिकली कार्ड बनवा के आओगे कि चलो मैं कार्ड छपवा के आता हूँ या आती हूँ, एक मेरी फ्रेंड को मेरे को इनवाइट करने का है, नहीं ना। तो आप क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली एक पर्सन को इनवाइट करते हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कार्ड नहीं यूज करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेटर यूज होगा स्पेसिफिकली एक पर्सन के लिए। ऑलराइट, इसकी कुछ असेंशियल है, और देखते हैं कि असेंशियल क्या क्या है। तो अभी यहाँ पर इसको फर्स्ट या सेकंड पर्सन में लिखना है। पर्सनल फीलिंग इमोशंस डेफिनेटली आप यहाँ पर शो कर सकते हो। लेटर जो राइटर्स एड्रेस है वो आपको यूजुअली जैसे हम लोग लिखते हैं वैसा हम लिखेंगे। यहाँ पर आप डियर के साथ में नेम का यूज करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को हमारी एक फ्रेंड है नेहा, उसको इनवाइट करना है, तो हम लिखेंगे डियर नेहा। अच्छा, डेट जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूजुअली ईयर हम नहीं लिखते हैं। स्टाइल और टोन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और इनफॉर्मल होता है, बिकॉज ये इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल इनविटेशन है। टेंसेस का इतना ज़्यादा वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर टेंस ही यूज़ करना है, टोटली डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे कि हम कैसा टेंस यूज़ करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर सिंसियरली यूज़ करना है। तो ये कुछ असेंशियल्स हो गए इसके। नाउ ये जाएगा आपके लेटर फॉर्मेट में। नाउ ये लेटर फॉर्मेट में जाता है, बट ये इतना इनफॉर्मल होता है कि इसके अंदर स्पेसिफिकली वो लेटर फॉर्मेट भी यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये नहीं। आप चाहो तो ओमिट भी कर सकते हो, सिर्फ एड्रेस दे दिया, डेट दे दिया, सैल्यूटेशन दे दिया और स्टार्ट कर दिया। तो इसमें थोड़ी चीज़ें ओमिट भी हो सकती है। पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मतलब मुझे आपको बताना ज़रूरी था कि ऐसा भी हो सकता है, बट पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि पता नहीं है कहीं आपके फॉर्मेट में बाई चांस कभी कभी हो जाता है ना, क्योंकि टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लेटर लिख रहे हो तो दैट शुड बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, और अगर आपने नहीं लिखा तो बाई चांस आपके मार्क्स कट जाए। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मेट तो हमारा वही रहे लेटर का। कौन सा फॉर्मेट है लेटर का? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन या सैल्यूटेशन फिर सब्जेक्ट, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नेम, यही होना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मस्त एकदम हमारा लेटर लिखने वाले हैं। लेटर क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन में होगा, आप पर्सनली किसी और को लिख रहे हो, तो उसका टोन भी काफी इनफॉर्मल और काफी चिल वाला हो सकता है। तो जैसे कि You will be glad to learn that I have secured 80th rank in CBSE PMT competition.
I have got admission in prestigious institution Shivaji College, Nagpur. I want to share a few happy moments of my life in company of my old men at a dinner in Hotel Kanishka at 9 p.m. on 23rd July 20XX. Please join the celebrations and merry making. Yours sincerely, Rohit. कितना कितना ऐसा टोन बहुत ऐसा है ना, ऐसे रिजिड टोन नहीं है, तो यहाँ पर टोन आपका रिजिड नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैं वापस आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि प्लीज इसमें कार्ड फॉर्मेट यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्संस को जाता है एंड दैट्स व्हाई अगर आप कार्ड फॉर्मेट यूज करते हो तो वो टोटली इलॉजिकल हो जाता है कि आप एक इंसान के लिए कार्ड छपवा रहे हो। इसके बाद में आपके जो दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इनविटेशन में, वो आते हैं रिप्लाईज के। ना रिप्लाईज का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट रिप्लाईज भी हम लोग कैसे करते हैं, लेटर्स के थ्रू करते हैं। लॉजिक है उसमें, अगर आप एक इंसान को रिप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आप कार्ड नहीं बनाओगे। तो प्लीज इस चीज को लॉजिकली समझिए और आप ये मत डरिए कि आपको सीबीएसई बताएगा कि ये ड्रॉ करना है या ये बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिसाइड करोगे, तो आप डिसाइड करोगे तो प्लीज लॉजिक्स याद रखो और उस अकॉर्डिंग डिसाइड करो। जब हम रिप्लाई करेंगे तो भी हम एक स्पेसिफिक पर्सन को रिप्लाई करेंगे कि हम आ सकते हैं या हम नहीं आ सकते हैं। क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन को रिप्लाई करेंगे तो वो रिप्लाई होना चाहिए लेटर फॉर्मेट में, ना कि कार्ड फॉर्मेट में। ना लेटर फॉर्मेट में रिप्लाई होगा, फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का रहने वाला है, बट अगर हम फॉर्मल रिप्लाई देंगे तो थर्ड पर्सन में होगा, इनफॉर्मल रिप्लाई देंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन में होगा, जस्ट लाइक फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। बट यहाँ पर रिप्लाई दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप चूज कर सकते हो कि उस पर्सन के इवेंट में आपको जाना है, या आप सेलेक्ट कर सकते हो कि उस पर्सन के इवेंट में आप नहीं जाना चाहते हो। वॉट एवर इज द केस, प्लीज एक्सप्लेन मत करने लग जाना कि क्या रीजंस हैं। अगर आप रिफ्यूज करते हो तो रीजन दीजिएगा प्रायर कमिटमेंट, और अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो लिखिएगा दैट विल बी हैप्पी टू ज्वाइन द इवेंट। इसीलिए यहाँ पर आपको ये कोशिश करनी है कि आपको बहुत टोन थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, और अगर आप मना कर रहे हो तो ज़्यादा रूड नहीं होना है, और हाँ कर रहे हो तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड रखना है टोन को। तो उस चीज़ को दिमाग में रखोगे और फिर रिप्लाईज लिखोगे। रिप्लाईज और इन्विटेशन के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सो ये था हमारा इनविटेशन, और ये किया आज हम लोगों ने मस्त इनविटेशन को मस्त रिवाइज। और अभी आप चाहो तो आप मुझे प्लस पर कर सकते हो ज्वाइन। कोड मेरा है SDC18, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। बहुत अमेजिंग कोर्सेज लेके आ रही हूँ फेब्रुअरी में, सो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ऑल्सो 2 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लो 9 बजे लेटर टू एडिटर वाली क्लास में, और आई सी यू गाइज देयर। बाय बाय, टेक केयर।